हेलो एवरीवन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आइल्स विद AMK। आई होप गाइस ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਵਧੀਆ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਗਾइस ਅੱਜ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸ ਦਾ ਰਾਈਟਿੰਗ ਟਾਸਕ 1 ਦੀ ਵੀਡੀਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾफ़ी ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੈਸੇजेस ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਮ ਡੈਮੋ ਸੈਸ਼ਨ ਅਪਲੋਡ ਕਰੋ। ਸੋ ਇਹ ਮੇਰੀ ਕਲਾਸ ਦਾ ਡੈਮੋ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਆ। ਸੋ ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਆ ਮੇਰੀ ਕਾफ़ी ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗੂਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਵੀ ਲੱਗੀ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। तो गाइज़ ऑनलाइन क्लासेस ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਰੋਲ ਹੋਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸ਼ੋ ਹੋ ਹੀ ਰਿਹਾ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਫਰ ਨਿਕਾਲਿਆ ਹੋਇਆ ਆ 3600 ਜਸਟ ਫੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਫਰ ਆ 30 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਹੈਗਾ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਜਸਟ 7 ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਸੋ ਜੋ ਵੀ ਬੱਚਾ ਇਨਰੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਇਸ बैच ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਸ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੀ। ਸੋ ਗਾइज़ ਆਈ ਹੋਪ ਇਹ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾफ़ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਲੱਗੂਗੀ। ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਆ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫੀਡਬੈਕ ਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਿਓ। ਸੋ ਲੈਟਸ ਸਟਾਰਟ ਨਾਓ। क्वेश्चन किया the table below gives information about the percentage of workforce। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟੇਬਲ ਗਿਵਨ ਹੈਗਾ ਨੀਚੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ, ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਆ, ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਆ, ਵਰਕਫੋਰਸ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ employed in 6 industries in Australia between 1989 and 2009। ਸੋ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟੇਬਲ ਗਿਵਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ ਵਰਕਰਸ ਦੀ ਜੋ ਡਿਫਰੈਂਟ 6 ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। 1989 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2009 ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਡਿਫਰੈਂਟ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਜਾਏ ਟੇਬਲ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ, ਰਿਟੇਲ, ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ, ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਟੂਰਿਜ਼ਮਸ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਨੇਮ ਗਿਵਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ 6 ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ ਆ 6 ਉਹ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੈਨ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਇਹ ਹੈਗਾ 1989 ਐਂਡ 2009। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਸੀ, 15% 'ਤੇ ਸੀਗਾ, ਇਹ 9.8 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖਣਾ ਆ, ਡੀ, ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਆ ਇਹ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 15 ਸੀਗਾ ਅਤੇ 9 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਡੀ ਲਿਖ ਲੈਣਾ ਆ। ਇਹ 11 'ਤੇ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਇਹ 10 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਆ, ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਆ। ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥਰਡ 9.6 'ਤੇ ਸੀਗਾ, ਇਹ 11 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਆ, ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਆਈ ਲਿਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਬੇਸਿਕਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੈਨ ਇਹ ਸੀਗਾ 7.6 'ਤੇ, ਇਹ 8.3 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਆ। ਇਹ 6.8 'ਤੇ ਸੀਗਾ, ਇਹ 7.5 'ਤੇ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਆ। ਇਹ 5.5 'ਤੇ ਸੀਗਾ, ਇਹ 7.3 'ਤੇ ਸੀਗਾ, ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਈ ਆ, ਕਿਹੜੀ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋਈ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰੂਗੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਓਵਰਆਲ ਲਿਖਣਾ ਆ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰੂਗੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਦੈਨ ਤੁਸੀਂ ਪੋਰਸ਼ਨ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ BP1 'ਚ ਲਿਖਣਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ BP2 'ਚ ਲਿਖਣਾ ਆ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੇਸਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਡਿਵਾਈਡੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। 3 ਲਿਖ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 3 BP1 'ਚ ਲਿਖ ਦਿਓ, 3 BP2 'ਚ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ 2 BP1 'ਚ ਲਿਖ ਦਿਓ, 4 BP2 'ਚ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬਟ BP2 ਹੀ ਬਣਦੇ ਆ ਟਾਸਕ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਓਵਰਆਲ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਦੀ ਇੰਟਰੋ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਈ ਆ ਉਹ ਦੇਖੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਹੈ ਸਿੰਪਲ ਇੰਟਰੋ ਅਤੇ ਇਹ ਵਾਲੀ ਨੀਚੇ ਵਾਲੀ ਆ ਪੈਸਿਵ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਫਰਕ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਜੇ ਕਰਨਾ ਜੇ ਤਾਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦ ਟੇਬਲ ਚਾਰਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਅਬਾਊਟ ਦ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ ਆਫ ਵਰਕਰਸ। ਟੇਬਲ ਚਾਰਟ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਸੀਗਾ ਇਕੱਲਾ ਟੇਬਲ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖਤਾ, ਟੇਬਲ ਚਾਰਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸੀਗਾ ਗਿਵਸ, ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਅਬਾਊਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨੈਕਸਟ, ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਆਫ ਵਰਕਫੋਰਸ।
मैं उन्होंने की लिखा परसेंटेज की जगह पर लिखा मैं प्रपोर्शन ऑफ वर्कर्स, परसेंटेज की जगह पर प्रपोर्शन लिखा, वर्क फोर्स की जगह पर वर्कर्स लिखा, हू इनरोल्ड इन डिस्पैरेट सॉर्ट ऑफ फैक्ट्रीज, ऊपर सीगा 6 फैक्ट्रीज मैं लिखा, डिस्पैरेट मतलब डिफरेंट फैक्ट्रीज, ऊपर इंडस्ट्री सी उहदी जगह पर मैं फैक्ट्रीज लिखा। इन आस्ट्रेलिया इत्थे की सीगा बिटवीन, बिटवीन नूं असीं चेंज करते हैं फ्रॉम दे विच, एंड फ्रॉम दे नाल हमेशा आउंदा है टू, ठीक है, बिटवीन नाल एंड आउंदा आ, फ्रॉम दे नाल टू आउंदा है। सो ये जस्ट मैं पैराफ्रेज कर करके वर्ड्स लिखे, जिहड़े वर्ड्स तो मैनू पैराफ्रेजिंग आउंदी सी, मैनू उहदे सिनोनिम पता सी, मैं उन्होंने किता, जिहदा नहीं पता सी उन्होंने मैं नहीं किता, ठीक है। हमेशा जिहड़ा पता होवे उही लिखना चाहिए आ, जे नहीं पता उन्होंने डायरैक्ट लिख दो, गलत ना लिखो, उहदे नाल बैंड स्कोर कट होने आ। सो मैं की कहा कि जिहड़ा टेबल चार्ट आ सानू इनफॉर्मेशन दे रहा है प्रपोर्शन वर्कर्स की जो डिफरेंट डिफरेंट फैक्ट्रीज दे विच लगे हुए आ 1989 तो लैके 2000 तक। ये हो गई मेरी सिंपल इंट्रो। तो जे आप इनू पैसिव च लिखना आ, कुछ भी नहीं किया, जस्ट मैं इतों टेबल चार्ट कटिया आ, जस्ट टेबल चार्ट कटिया आ सिंपल दे विचों, बाकी सारा सेम है। तुसीं रीड करके भी देख सकते हो, जो आप टेबल चार्ट नू कट कर दिंदे आ सो ये बिल्कुल उही चीज़ बन रही है। द इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रपोर्शन ऑफ वर्कर हू इनरोल्ड इन डिस्पैरेट सॉर्ट ऑफ फैक्ट्रीज इन आस्ट्रेलिया फ्रॉम 1989 टू 2009, ठीक है, इत्थे तक बिल्कुल अपना सेम हैगा 2009। हुण आ जिहड़ी लाइन आ इज डिपिक्टेड बाय द रेंडार्डेड टैबूलर चार्ट, इहदे नाल अपना बनिया पैसिव। कोई भी तुहानूं आ जाए टाइप, तुसीं आ लाइन लिख देनी है इज डिपिक्टेड बाय द रेंडार्डेड, इत्थे तक तो सेम रहूगी, अगे तुसीं उहदा नाम लिख देना आ जिहड़ा भी तुहानूं चार्ट गिवन है। मैप होया मैप लिख देना, पाई होया पाई लिख देना, जो भी गिवन होया जस्ट वो लिख देना। हुण इत्थे मैं इज़ क्यों लिखिया, इज़ लिखण दा पिछे ये रीज़न सीगा क्योंकि मैनूं एक टेबल गिवन सीगा इत्थे, जे मैनूं 2 टेबल गिवन हुंदे तो मैं आर यूज़ करदी कि आर डिपिक्टेड बाय द रेंडार्डेड टैबूलर चार्ट्स, ठीक है। हुण एक सीगा सो एक दे नाल आपां इज़ यूज़ करते हैं कि ये दस्सिया गया आ टैबूलर चार्ट दे विच। टैबूलर चार्ट भी आपां टेबल चार्ट नूं ही कहते हैं। आई होप दोनों इंट्रो तो वधिया तरीके नाल क्लीयर हुई होनी आ, कुछ नहीं किया, जस्ट ये चों मैं टेबल चार्ट कट्टिया हैगा, इत्थों लैके 2009 तक बिल्कुल सेम इंट्रो अपनी हो गई सी। हुण आपां BP1 नूं स्टार्ट करते हैं। सो देखो BP1 नूं स्टार्ट करन लई उही कनैक्टर जो आपां हर टाइप दे विच लिखते हैं। आफ्टर एनालाइजिंग इट कैन बी सीन क्लीयरली दैट, कोई भी आ जाए दैट तक तो सेम रहेगा ही रहेगा, उस कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं हैगी आ। मैं कुछ थोनों सजैसट नहीं करूँगी तुसीं कि हाई कनैक्टर्स नूं यूज़ करा करो, जिन्ना सिंपल हो सकता है उन्ना सिंपल लिखण की कोशिश करा करो, अवॉइड करो ज़्यादा टैक्नीकल वर्ड्स का यूज़ करना क्योंकि उहदे नाल बैंड स्कोर कट होंदे आ। जिन्ना सिंपल होगा उन्ना थोड़ा बैंड स्कोर आऊगा, ठीक है। विच जस्ट एवरेज लैवल की वोकैबलरी नूं इंक्लूड करा करो, ज़्यादा हाई टैक्नीकल वर्ड्स नूं लर्न करने इन्नी प्रैफरेंस ना दो। हुण देखो 15% ऑफ इंप्लॉयज़, 15% जोड़े इंप्लॉयज़ आ वर इंगेज मतलब लगे पे आ इन 1989। देखो 15% आ, देखो 1989 दे विच 15% अपने इत्थे लगे हुए आ, ठीक है, यही लाइन में लिखी आ। नेक्स्ट देखो however it was declined by almost 5% in same industry but in 2009, 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਆ, डिक्रीज़ होया आ 5%, ऑलमोस्ट 5% का डिक्रीज़ होया आ। हुण देखो बाय द स्ट्रक्चर यूज़ किवें करना हुंदा आ, बाय द स्ट्रक्चर जदों भी तुसी यूज़ करना चाहते हो तो तुसी एक गल दी श्योरिटी रखो कि बाय द स्ट्रक्चर तुसी हमेशा लैस करके लेना है, ये चो लैस करो, ठीक है जी, ये तुसी लैस करना है तो कितना बनता है अपना। मैं इनू राउंड ऑफ कर लिया आ, राउंड ऑफ करके मैं इनू 10 कंसीडर किया आ। सो जो आप ये माइनस करते हैं तो अपने को कितना बचता है, 5 बचता है, ठीक है। हुण प्रॉब्लम आ गई कि मैं इनू राउंड ऑफ किया आ, सो कोई इशू नहीं हैगा क्योंकि मैं अगे वर्ड यूज़ किया होया आ ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट जो आप यूज़ कर लें तो कोई भी इशू नहीं आता हैगा, ठीक है। ऑलमोस्ट, अबाउट, नियर बाय, नियरली, अप्रॉक्सीमेटली,
ਨੀਅਰ ਬਾय इन्होंने वर्ड्स के जो आप यूज़ कर लेने ना तो वो राउंड ऑफ अपना सही कंसीडर करते हैं। जी तो अगे आप ये नहीं लाया तो सो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाऊगी। जे मैं ना लाउंदी ऑलमोस्ट तो वो गलत हो जाना सीगा। ठीक है, सो ऑलमोस्ट अप्रॉक्सीमेटली नीयर बाय नीयरली अबाउट इन्होंने वर्ड्स का यूज़ जरूर कराया करो जो थोड़ा एग्जैक्ट फिगर नहीं गिवन होंगी है। सो नैक्सट देखो बाय द स्ट्रक्चर दे विच हमेशा लैस करके अमाउंट लिखनी है। दोवां चों लैस करके लिख दिता मैं 5% डिक्रीज होया है। नैक्सट इन कंट्रास्ट, ठीक है, कनैक्टर सब तो पहला यूज़ किया। दैन उस तो बाद की क्या कि जी परसेंटेज हैगी आ वर्कर्स की नीयरली आइडेंटिकल आ। नीयरली मतलब लगभग इक्को जी हैगी आ। हुण उत्थे आपां नूं 11% गिवन है तो 10.1% गिवन है। हुण मैं बार बार परसेंटेज नूं रिपीट नहीं किया। ठीक है, सो मैं लिख दिता नीयरली आइडेंटिकल आ। सो ये भी एक सेंटेंस हो गया। नैक्सट देखो कनैक्टर मोर ओवर percentage of workforce was 9.6% and 11.3% in healthcare sector in 1989 and 2009 respectively। सब तो इफेक्टिव ये स्ट्रक्चर आ रिस्पैक्टिवली का, बहुत इफेक्टिव आ रिस्पैक्टिवली का स्ट्रक्चर। ये की क्या कि जी परसेंटेज हैगी आ वर्कफोर्स की कितनी आ 9.6%, 11.3% हैल्थ केयर दे विच 1989 ते 2009 दे विच। हुण देखो इनू किवें लिखना हुंदा उस चीज़ समझ लो, इन्ना बैंड बहुत ज़्यादा इंप्रूव हुंदा है। आपां 9.6 नू पहला लिखिया, सो जिहड़े ईयर दे विच 9.6 है उही ईयर आपां पहला लिखना है। ठीक है, 11.3 अपनी 2009 दे विच सीगी तो उहदा ईयर भी मैं बाद विच लिखिया हैगा। उत्थे तुहानूं शो कर दिंदी एक बार, फिर तुहानूं क्लियर हो जाऊगा चंगे तरीके दे नाल। आ तुसीं देख लो 9.6 किहड़े दे विच हैगी आ 1989 दे विच हैगी आ। ठीक है, ते जिहड़ा 11.3 आ वो किहदे विच हैगा आ 2009 दे विच हैगा। हुण देखो मैं 9.6 लिखिया पहला तो उहदा ईयर भी मैं पहला लिखिया, 11.3 मैं बाद विच लिखिया तो उहदा ईयर भी मैं बाद विच ही लिखिया होया आ। तुसीं इत्थे देख लो 9.6 पहला आ उहदा ईयर भी 1989 पहला लिखिया होया आ, 11.3 बाद विच आ तो उहदा ईयर भी बाद विच लिखिया होया आ। जिन्नी भी तुहानूं परसेंटेज गिवन हुई पहला तुसीं परसेंटेज लिख देनी आ, दैन तुसीं ईयर लिखना आ। ईयर नूं ध्यान विच रखना, जिहदी रेशियो पहला लिखी आ उही ईयर पहला आऊगा, जिहदी रेशियो बाद विच लिखी आ वो ईयर बाद विच आऊगा। जस्ट नाल वर्ड अटैच कर दो रिस्पैक्टिवली, बस ये सब तो इफेक्टिव स्ट्रक्चर आ एंड सारे इनू यूज़ करते हैं। जिन्ने मेरे तो स्टडी करते सारे इनू यूज़ करते हैं, बहुत ईजी है। BP2 नू स्टार्ट करते हैं। द टेबल फर्दर कोलेट्स दैट कनैक्टर यूज़ किया। इत्थे टेबल सी तो मैं टेबल लिखता, जे मैनू दिता हुंदा बार मैं बार लिख देना सी, जे पाई है तो पाई लिख देना सी। ठीक है, दैट तक सेम रहूगा। देयर वॉज ए माइनर डिफरेंस सीन इन कंस्ट्रक्शन साइड। कंस्ट्रक्शन साइड दे विच घट ही डिफरेंस दोनों दे विच देखा गया। सो देख लैंदे आ घट ही अपने को डिफरेंस दिता होया। सो देखो 7.6% है, 8.3% है। मैं क्या माइनर डिफरेंस है, मतलब थोड़ा जी डिफरेंस है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इन्हां दी परसेंटेज दे विच। नैक्सट देखो मूविंग टूवर्ड एजुकेशन साइड, एजुकेशन की साइड में मूव करते हुए इन फॉर्मर ईयर, फॉर्मर हुंदा पहला, पहले ईयर दे विच किन्ने सी नीयरली 6.8 एम्पलॉयज़ गॉट जॉब, 6.8 एम्पलॉयज़ नूं जॉब मिली सी। वेयर एज कनैक्टर इट वॉज एस्केलेटेड टू 7.5 इन लेटर ईयर। बाद वाले ईयर दे विच की होया आ एस्केलेट हुई है। एस्केलेट मतलब इनक्रीज़ हुई आ, कित्थे तक पहुँच गई 7.5% तक पहुँच गई सी बाद वाले ईयर दे विच। लेटर हुंदा बाद, फॉर्मर हुंदा पहला। इहदे विच स्ट्रक्चर यूज़ किया होया 2 दा। सो जदों भी आपां 2 नूं लिखना हुंदा उहदी आपां एग्जैक्ट वैल्यू लिखदे हैं। ठीक है, बाय दे विच तां आपां इन्हां दोवां दा डिफरेंस पिक किया सी, बट 2 दे विच की आ आपां सब तो पहले 6.8 लिखता, फिर मैं क्या कि ये इनक्रीज़ हुई आ ते 2 कित्थे तक पहुँच गई 7.5% तक पहुँच गई सी।
ठीक है। जो भी 2 का स्ट्रक्चर लाना आ तो 7.5 तो अगे मैं 2 लगा दिता। 2 लिख के तुसी एग्जैक्ट वैल्यू नूं लिखना आ, उस डिफरेंस नहीं काउंट करना। 2 दे विच डिफरेंस नहीं आना हैगा, बाय दे विच डिफरेंस आना है। हर बार डिफरेंट मैं सेंटेंस यूज़ किया होया है। बाद विच जदों ओवरव्यू दूँगी फिर तुहानूं क्लियर हो जाना है कि किहड़े मैं यूज़ किए हुए आ। इवेंचुअली मतलब लास्टली ये मैं तुहानूं सेंड करांगी, तुसीं घर बैठ के इहनूं रीड करिओ, दैन तुहानूं ज़्यादा क्लैरिटी होगी जो तुसीं उहनूं खुद रीड करोगे। एम्प्लॉयमेंट रेट वॉज एक्सट्रीम लेस इन टूरिज़म नोट ओनली 1989 बट ऑल्सो इन 2009। दोनों ईयर दे विच ही घट परसेंटेज देखी गई है टूरिज़म दे विच। सो तुसीं देख सकते हो 5.5 सब तो छोटी वैल्यू है पूरे दे विचों 5.5 तो ये 2009 दे विचों सब तो छोटी वैल्यू टूरिज़म दे विच हैगी 7.3। सो मैं की कहा कि सब तो घट प्रैफरेंस